Welcome to episode 4, the gold medal mindset. Is topping CA just about studying harder, or is there a mindset that completely changes the game? Assalamu alaikum and welcome. In today's episode, the gold medal mindset, we go inside the thinking patterns, habits, and discipline that set the top performers apart. What do gold medals actually do that is something very different? How do they stay consistent when others lose momentum? Joining us today is Mubashira Malik, who will share the strategies, mindset, and success that define her excellence. Stay with us because this episode might just redefine how you approach the success in CA. So we have our gold medalist, Mubashira Malik. Hi Mubashira, how are you doing? Hi Guria, I'm doing good. How are you doing? I am doing good too, Alhamdulillah. Assalamu alaikum everyone. My name is Mubashira Malik and I'm a qualified chartered accountant. And Alhamdulillah, throughout my CA journey, I was fortunate enough to receive multiple distinctions. Jinme I got 4 gold medals and 3 merit certificates throughout my CA. I am currently working as a senior associate in PwC Lahore and I am left with around 6 months of my articleship there. Mubashira, securing a gold medal is an incredible achievement, mashallah, and you have achieved the gold medal. So in your viewpoint, what truly sets the toppers apart from others? Honestly, I don't think there is any difference between toppers and other students in terms of abilities. बस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने डेली रूटीन में ज़्यादा कंसिस्टेंटली एफर्ट्स को अप्लाई करते हैं एंड वो एक ज़्यादा डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करते हैं इन देयर डेली रूटीन्स एंड दैट इज़ व्हाट सेट्स देम अपार्ट. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वाज नेवर द टाइप ऑफ स्टूडेंट हु वुड वेट टिल लास्ट मंथ्स टू स्टार्ट स्टडीइंग और हु वुड रिलाई ऑन लास्ट मिनट प्रिपरेशंस. बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि मैं सेशन स्टार्ट से ही अपने लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज स्केड्यूल बना लूँ फॉर एवरी सब्जेक्ट. मैंने कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से लेकर चलना है और इसके अलावा मैं कॉम्प्रीहेंसिवली प्लान करती थी अपनी पढ़ाई को कि लेक्चर्स कब तक ख़त्म करने हैं और सिलेबस किस तरह से कवर करना है, रिवीजन को किस तरह से लेकर चलना है और उस स्केड्यूल को मैं प्रॉपर्ली फॉलो करती थी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन स्टेइंग ऑन ट्रैक एंड ऑल्सो मॉनिटरिंग माई प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट. It means you are consistent all over the time period and you know, okay, you have a schedule and you're working. I think consistency is my greatest strength and that is one thing that has always helped me staying on track and that is what made all of the difference for me. So Mubashira, do you think it's more about the intelligence or the hard work or the right mindset, or is it just about the good luck, okay, I am the lucky charm and I get the gold medals and I am successful? I believe that right mindset is the one thing that sets foundation for everything else. इंटेलिजेंस आपको काफ़ी हेल्प करती है एंड वर्किंग हार्ड इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट बट एक प्रॉपर राइट माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड फॉर स्टेइंग कमिटेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एज वी ऑल नो कि CA एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी है और एक बहुत डिमांडिंग जर्नी है और इसमें थिंग्स डोंट ऑलवेज गो एज पर द प्लान. आपको काफ़ी दफ़ा ड्यूरिंग योर जर्नी काफ़ी सेटबैक्स फेस करना पड़ता है, आपको फेलियर्स को फेस करना पड़ता है एंड देयर आर सम टाइम्स वेयर यू डू एंड अप मेकिंग सम मिस्टेक्स. लेकिन अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है और आपका ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होता है तो वो आपको हेल्प करता है कि आप उन गलतियों से सीख कर उनसे आगे बढ़ें रादर दैन जस्ट गेटिंग डिस्करेज्ड बाय देम और गेटिंग डीमोटिवेटेड बाय देम. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि सेल्फ बिलीव हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर पार्ट ऑफ माई माइंडसेट. जब भी मेरे लिए कोई ऐसी सिचुएशन आती थी जो कि अनसर्टेन होती थी या जहाँ पर मेरे लिए चीज़ें एज़ पर द प्लान नहीं जा रही होती थी तो आई वुड ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती एंड यू नो आई हैव डन दिस बिफोर तो आई कैन डू इट अगेन. तो हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन माई सेल्फ एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रियली हेल्प मी इन स्टेइंग कमिटेड ओवर ईयर्स एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ. So what specific study strategy do you follow? स्टडीज़ में मेरा जो मेन फोकस हमेशा से रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के ऊपर है रादर दैन जस्ट मेमोराइजिंग एवरीथिंग और गोइंग थ्रू द स्टडी मटेरियल अगेन एंड अगेन. मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर करूँ और मैं चीज़ों के पीछे जो लॉजिक है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करूँ बिकॉज वही चीज़ आपको हेल्प करती है अनसीन और अनफेमिलियर क्वेश्चंस को टैकल करने में ड्यूरिंग द एग्जाम्स. इसके अलावा वन मेन थिंग दैट ऑल्सो रियली हेल्प मी वॉज फॉलोइंग माई टीचर्स. मैं अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को अच्छी तरह से फॉलो करती थी जिस तरह से वो बताते थे कि आपने पढ़ाई को किस तरह से लेकर चलना है, आपने रिवीजन्स को किस तरह से प्लान करना है एंड पास पेपर्स को किस तरह से प्रैक्टिस करना है. आई वुड ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उनकी गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से फॉलो करूँ. मैं टेस्ट वगैरह अच्छी तरह से अटैम्प्ट करती थी, वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, इसके अलावा मॉक एग्जाम्स वगैरह मैं उनको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करती थी. मैं उनको सबमिट करवाती थी टीचर्स असिस्टेंट्स को एंड उसके बाद मैं उनके ऊपर प्रॉपर फीडबैक्स लेती थी एंड उन फीडबैक्स के वजह से खुद को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की कोशिश करती थी. So Mubashira, ये सब आप आर्टिकल्स के साथ कैसे मैनेज करते थे? It might be really tough to manage both the studies and the articles.
ऑब्वियसली जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो और ऑब्वियसली सी ए फाइनल आपको ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कैफ, बिकॉज थोड़ी एडवांस हो जाती है पढ़ाई भी एंड एक फुल टाइम जॉब, तो उसमें मैनेज करना मुश्किल तो होता है। लेकिन मैं उसके लिए एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी इस तरह से बनाती थी, मैं अपना स्केड्यूल इस तरह से सेट करती थी कि जो ऑडिट बिजी सीज़न होता था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेट सीटिंग्स होती थी और काफ़ी ज़्यादा काम होता था, तो उसमें मैं अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक ले लेती थी या फिर थोड़ा कम प्लान करती थी ड्यूरिंग दैट 1 or 1.5 month, एंड देन आई वुड मेक अप फॉर इट अगले वाले महीनों में। एंड इसके अलावा हमने वीकेंड्स को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करती थी कि आई वुड ट्राई कि मैं हर वीकेंड के ऊपर एटलीस्ट 8 से 10 घंटे पढ़ लूँ, ताकि मेरा सारा हफ्ता का जो कोर्स मिस हो गया या लेक्चर्स वगैरह मिस हो गए हैं वो मैं कवर कर लूँ। और मैं बस अपने स्केड्यूल को इस तरह से सेट करती थी कि आई वुड प्लान मोर वर्क अराउंड द लेस बिजियर टाइम्स। 8 to 10 hours on weekends, so you don't hang out on the weekends? नहीं, आई डिड हैंग आउट, बट आई वुड प्लान इस तरह से कि आई वुड हैंग आउट मोर ऑन फ्राइडेज फॉर एग्जाम्पल, बट और थर्सडेज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन सैटरडे संडे वो दिन होता था जिसमें आपने कहीं नहीं जाना और सिर्फ घर बैठ के पढ़ाई करनी है, तो मेरा मेन फोकस यही होता था कि सैटरडे संडे को आई वुड अवॉइड गोइंग आउट इतना ज़्यादा। बट ऑब्वियसली देयर आर सम अल्टरनेटिव वीकेंड्स कि आप कभी बाहर चले भी जाते हो, और आई एम अ हॉस्टलाइट एज वेल, तो अल्टरनेटिव वीकेंड्स से मेरा ये भी होता था कि मैंने घर जाना आता था, तो तब आपसे इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही होती घर जाके, तो आई जस्ट हैड टू शफल। So it means the consistency is the key factor in your success. You are consistent even on the weekends too. Yes, I think consistency has always been my major strength, as I told you before, and that is what really helped me staying on track and staying focused. Were there moments when you struggled despite being a high performer, and how did you handle them? ऑब्वियसली स्ट्रगल्स हर स्टूडेंट की जर्नी का पार्ट होती हैं और मेरी जर्नी भी कोई डिफरेंट नहीं थी। आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। फॉर एग्जांपल मैंने अपना पूरा सी इंटर घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से किया है, तो उस टाइम पर आई डिडंट रियली हैव एनीवन टू गाइड मी, और यू नो यू हैव डिस्कशंस विद योर पीयर्स एंड योर फ्रेंड्स वगैरह जिसके साथ आप मिलकर प्लान कर लेते हो, बट आई डिडंट हैव दैट। तो मुझे अपनी सारी रूटीन और अपना सारा स्केड्यूल कि कौन से पेपर्स देने हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी है और पेपर्स तक तैयारी को किस तरह से इंश्योर करना है, आई हैड टू मेक श्योर ऑल ऑफ दैट ऑन माई ओन। तो दैट इज़ वन थिंग जहाँ पे मैं स्ट्रगल करती थी ड्यूरिंग माई कैफ। और इसके बाद सी ए फाइनल्स में आके ऑब्वियसली आपने पढ़ाई के साथ एक फुल टाइम जॉब को मैनेज करना होता है, अलॉन्ग विद ट्राइंग टू हैव अ सोशल लाइफ, एंड देयर आर यू नो पर्सनल कमिटमेंट्स एंड फैमिली कमिटमेंट्स एज वेल। तो उस टाइम पे आई रियली यूज्ड टू स्ट्रगल समटाइम्स, एंड काफ़ी दफ़ा चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती थी। लेकिन उन पॉइंट्स पर मैं अपना फोकस वापस लगाने के लिए अपने आप को रिमाइंड करवाती थी कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। उसके अलावा आई ऑलवेज हैड अ वेरी क्लियर सेंस ऑफ पर्पस इन माई हेड कि व्हाट आई वांट टू डू एंड वेयर आई एम हेडेड टू। तो जब आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस होता है और आपके पास क्लैरिटी होती है कि आपने क्या करना है, तो ईजियर हो जाता है राइट चॉइसेस लेना और पाथ के ऊपर रहना। सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है आपको CFF में, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लगा हो कि यार दिस इज़ द टफेस्ट एंड आई नीड टू इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ माई टाइम इन इट? आई थिंक आई रियली स्ट्रगल्ड विद अकाउंटिंग का सिलेबस बिकॉज दैट वाज अ लॉट। हाँ, दैट इज़ वेरी लेंथी। उसके अलावा ऑडिट के पास पेपर्स मुझे थोड़े से स्ट्रगलिंग लगते They are tricky and like tough to handle. हाँ, ऑडिट के पास पेपर्स वर दैट फॉर मी कि सिलेबस तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेक्चर्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे, बट पास पेपर्स वर रियली चैलेंजिंग। इसके अलावा आई वुड से MSc2 के पास पेपर्स वर अ बिट टफ टू, but alhamdulillah it all worked out. What will you advise to those students who face these subjects very difficult and they think that this is the most difficult subject? How should they crack those subjects? Whenever it comes to difficult subjects और complex subjects, जहाँ पर आपको जब आप struggle कर रहे हो उन सब्जेक्ट्स को क्रैक करने में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो आपकी मेन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप उनको ज़्यादा टाइम एलोकेट कर दो एज़ कम्पेयर टू द ईजियर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स के लिए थेरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो व्हाट अप्रोच आई यूज़ टू फॉलो वाज कि जो चीज़ मुझे मुश्किल लग रही है, जो टॉपिक मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं उसको ज़्यादा टाइम एलोकेट कर देती थी। मैं उसको अपने डे के स्टार्ट में प्लान कर लेती थी बिकॉज तब आपकी एनर्जी भी हाईएस्ट होती है और आपका फोकस भी ज़्यादा होता है। तो आप उनको बेहतर फोकस वाले टाइम पे व्हेन एवर योर माइंड इज़ परफॉर्मिंग एट इट्स बेस्ट, भला वो सुबह हो या वो रात हो, आप उनको तब प्लान कर लें। आप इसके अलावा टीचर्स के साथ और टीचर असिस्टेंट्स के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होते रहें। एंड वन अदर थिंग दैट कैन हेल्प अ लॉट इज़ ग्रुप स्टडीज़, कि आप अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया करें उन चीज़ों को जो आपको मुश्किल लग रही हैं, बिकॉज जब आप डिस्कस करते हैं तो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा देर तक रह जाती हैं और अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। That's true. Group studies really help. What advice will you give to those students जो कि CA में position लेना चाहते हैं but they don't know where to start?
I would say कि consistency is the one thing that where you can start. आपको extraordinarily इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है एक्सेल करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इसके आप अपने अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट हैबिट्स को पैदा करें, आप एक डिसिप्लिन स्केड्यूल को फॉलो करें, अपनी डेली रूटीन में डिसिप्लिन को लेके आएँ, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रियली गोना हेल्प यू. इसके अलावा ट्राई टू शो अप एवरी डे, ट्राई टू पुट इन स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, बट ट्राई टू डू दैट एवरी डे. Other than that, I would also like to say कि don't compare yourself with anyone. आपकी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, आप अपने आप पर यकीन रखें. Trust yourself, have belief in yourself and trust your own process. And most importantly, अल्लाह ताला की ज़ात में यकीन रखें कि वो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाने देते. आप जितना कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको उसका बहुत अच्छा अजर देंगे, and he is gonna take care of things and success will follow for you inshallah. Thank you so much, Mubashra, for your time, and it's really wonderful to listen from you कि the gold medalists are like the normal people. They are just कि वो consistent होते हैं and they are like hard work throughout their journey. So it's so good to hear from you. Closing our this chapter of the gold medal mindset.